So students, actually in this question, he wishes to cross the river straight. So he wishes to cross the river straight. So this is your final, this is your final vector. This should be the final vector. This should be the, he wants to cross it straight. He is not going straight. He wishes to cross the river straight. So this is what he wishing for. He wants to cross it straight. So this is the initial position. This he wants, he wished this to be the final position. So along which direction he must strike? So this is the river is flowing in this direction. So he will be, striking in this direction. So he will strike in this direction. Let this angle be theta. So he is striking in this direction, students. Okay. Okay, sir. So this is the case of shortest distance. Which case is it? Shortest distance. Shorter distance. Yes, shortest distance. So this will be the resultant Vm. So this is the initial position, this is the final position. So so simply we need to tell this angle theta. So how much is this? This is your V. V is how much? 5. So this is 5. VR is, sorry. Have we, see, river flows at 5 km per hour, students. This is, we have written it. The river is flowing with 5 km per hour, and the speed of the man, the swimmer who can swim, is 10 km per hour. So this is, speed of the man is 10 and the speed of river is 5. So you have this scenario. This is 10, this is 5. So how much will it be? This will be equals to under the root 10 square minus 5 square. Yes. 503. That is yes, 5 under the root 3. So this will be the Vm. So Vm you have found, how much you have found Vm? 5 root 3 km per hour. Okay. So students, your first question is along which direction he must strike. So which direction? This is theta. So this angle is theta. So theta is opposite upon hypotenuse. So opposite upon hypotenuse here, sine theta. So sine theta is equals to 5 upon 10. So sine theta is equals to, what is 5 upon 10? 1 by 2. 1 by 2. So when is sine theta 1 by 2? 30 degree. Sine 30 degree. So this is sine 30 degree. So it means theta is equals to 30 degree. So he needs to, in which direction he has to stroke. So how much is the angle he is making with the river, students? Always with the river we have to write the final answer. This is 90 degree. So he must strike at which angle? बोलो ना, हाँ? Yes बेटा. 30 degree. नहीं 30 डिग्री तो रिवर तो ये यहाँ है ना, ये एंगल है ना आपका. 120 degree. With the bank of the river you can say angle of 120 degree with the bank of the river. Okay. So with 120 degree with the bank of the river. Got it? Now second part, what should be his resultant velocity?
ये स्पीड लिखी है आपने 5 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होगी आपकी। तो हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 5√3 in which direction? 5√3 kilometer per hour. Yes, at an angle of 90 degree with the bank of the river, कह सकते हो आप। Yes, at an angle of 90 degree with the bank of the river। सही है नहीं है भाई? वेलोसिटी या तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना, तो फाइनल डायरेक्शन आएगी तो 90 डिग्री एंगल है ना। ओके, थर्ड पॉइंट, हाउ मच टाइम ही वुड टेक। अब आपको एक ही डिस्टेंस पता है 800 मीटर, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? अभी तो निकाल ली है, 5√3 है ना बेटा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में 5√3 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी है, और डिस्टेंस है 800 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, अब ये 800 मीटर्स है ना, तो इसको किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? मीटर खत्म करना है। 220. तो 1000 से आप क्या कर दो इसको, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? ये 2 0 से 2 0 कट गई, और दिस इज 4 एंड दिस इज 2, सो 5 to the 10। नहीं सॉरी, 5 to the 10, 5 5 the 25 आएगा ना, 25√3 अपॉन 4 किलोमीटर, और सॉरी आर। तो ये आ गया आपका आंसर। उल्टा कर दिया स्टूडेंट्स। उल्टा कर दिया ना बेटा। Yes, sir. 160 and root 3 by 3 है। हाँ, तो 800 है ना, तो 800 मीटर, तो उसके आप उसको किलोमीटर में चेंज कर लो, तो आप लिख सकते हो 0.8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड इज योर 5√3। तो कितना आ जाएगा? 160 and root 3 by 3। हाँ, √3 से रैशनलाइज कर लो, तो कितना आ गया? 0.8√3 अपॉन 15। तो दिस इक्वल्स टू 0.8 into √3 is 1.7 divided by 15। और ये आ गया आपका R। तो R को अगर आप मिनट में चेंज कर सकते हो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 60 मिनट्स अपॉन R, 1 R। तो R से R कट गया, 60 मिनट्स, तो ये 60, तो 15 for the 60। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 17 for the 68, तो 0.8 into 17 for the 6.8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, स्टिल आपको ये 60 से, और इसको सेकंड्स में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मिनट्स में आ तो जाएगा लेकिन काफ़ी कम मिनट्स आएंगी, तो सेकंड में निकाल दे बेटर है। वैसे मिनट में निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64 एंड 8 6 48, 48 एंड 6
54, so 5.44 minutes। और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So let's do the next question then. A boatman can row with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वी कितना दे रखा आपको? 10 किलोमीटर पर आवर। वी आर कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू रीच द पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट। तो सेम केस हो गया स्टूडेंट, ये भी है ना, जो भी हमने किया है। वो स्ट्रेट पहुंचना चाहता है, ये उसका रिजल्टेंट है, यहां वो पहुंचना चाहता है, तो दिस इज वी एम। ठीक है, रिजल्टेंट है जो। तो ये वी आर हो गया आपका, और इस डायरेक्शन में उसे जाना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. And this angle is your theta. The width of the river is 2 किलोमीटर। width आपको कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर। तो उसे किस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने हैं ये आपको बताना है। ओके, तो ये आपके पास वी आर 5 है, और ये स्ट्रोक नहीं लगाने स्टूडेंट। बोट है इस बार, तैर नहीं रहा आदमी, ये क्या है? बोट। ओके, तो इस डायरेक्शन में बोट चलाएगा तो रिवर उसको यहां निकालेगी बाहर, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका फाइनल है वी एम। ये तो ये आपका वेक्टर वी, सॉरी, ये आपका बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी, और उसके ऊपर रिवर आपने ऐड कर दी, रिवर की वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ट्रायंगल बन गया ना, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ इनिशियल को किससे ज्वाइन कर दिया? फाइनल पोजीशन। तो क्या आ गया आपका रिजल्टेंट? क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो आपको निकालना है डायरेक्शन थीटा। तो सेम, मतलब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका थीटा एंगल है, ये दे रखा आपको 5, ये दे रखा आपको 10। तो सेम हो गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/10। तो डेट इज 1/2, डेट इज साइन 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो along with the bank of the river क्या आ जाएगा? along with the bank of the river कितना बन गया आपका? 120। बेटे 90 है ना, 90 ऐड कर दिया करो ना इसमें। Yes, sir. 120. हाँ, तो he should row the boat with 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये क्यों, ये सर हम इधर ही क्यों ले रहे हैं, इधर क्यों ले रहे हैं? देखो बेटे, अगर आप इस डायरेक्शन मूव करते हो तो आपका थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर आप इस डायरेक्शन मूव करोगे तो थीटा नेगेटिव होगा। समझ गए? तो थीटा जो है, आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो यहां हमने पॉजिटिव लिया है, तो इधर मूव किया 120 डिग्री। या आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दो,
इट विल कंफ्यूज यू। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा होता है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन होती है हमारी पॉजिटिव, और ये जो है डायरेक्शन होती है नेगेटिव, जो कि क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो उसको छोड़ो। तो ये जो एंगल है ये यहां से विद द बैंक ऑफ द रिवर इट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री विद द, अब कौन सा बैंक है ये, या इसको आप ऐसे ही मान सकते हो, ये जो है 120 डिग्री clockwise with the bank of the river, 120 degree with the banks of the river। तो कोई क्वेश्चन आसानी है इसमें, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है जो बोट है इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। किस तरफ जा रही है? अब ये डायरेक्शन आ गई नॉर्थ की आपकी, ये डायरेक्शन है ना आपकी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके, तो बोट जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर। और वाटर करंट किस, अब वाटर जो रिवर है वो किस फ्लो से बह रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब इसको समझो, इसको कैसे आप बनाओगे इस डायरेक्शन को। सबसे पहले क्या है? साउथ। ये आपका मेन है, ये नाउन है, और उसके आगे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, वो डिस्क्राइब करते हैं उसको। तो सबसे पहले साउथ से शुरू हो जाओ, ये साउथ डायरेक्शन है। साउथ से ईस्ट चलो 60 डिग्री। तो साउथ से ईस्ट चले आप कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ वाटर। स्टूडेंट समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो वाटर इस डायरेक्शन में है आपका इस बार। ओके, और किस स्पीड से वाटर जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। और बोट जा रही है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बोट की? तो क्या करेंगे इस केस में? वही दो वेक्टर्स को ऐड करना। हमने दोनों को इस बार किससे जोड़ा है स्टूडेंट्स? बाई Parallelogram. बाई टेल, बाई टेल्स ज्वाइन किया ना इस बार हमने दोनों वेक्टर्स को। तो पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा और डायगोनल जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, Yes, yes, sir. तो ये व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट? तो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये रिजल्टेंट। अब ये आपको रिजल्टेंट है वेलोसिटी है, तो इसका मतलब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है, दोनों चीजें बतानी है स्टूडेंट्स। कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब आप देखो कैसे निकालोगे ये। आपको ये साइड दे रखी है 10, और ये आपको निकालना है अब स्टूडेंट्स हम एक और तरीका देखेंगे इन वेक्टर्स को कैसे ऐड करें इस सिचुएशन में। तो पहला तरीका आपने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ।
दूसरा लॉ रिजॉल्विंग वेक्टर्स। हमने मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन किया था कि आई कैप और जे कैप में रिजॉल्व कर लेंगे वेक्टर्स को, और फिर आई कैप ऐड हो जाएंगी, जे कैप ऐड हो जाएंगे, और फिर वापस उसको, तो पहले वेक्टर को, जो वेक्टर उसको इसमें चेंज किया आई कैप प्लस जे कैप में, फिर एडिशन की, और फिर वापस उसको रिजल्टेंट वेक्टर में चेंज कर दिया। और तीसरा तरीका है, हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेट फॉर्मूला है, ये दो वेक्टर्स हैं सपोज आपके, दिस इज वेक्टर सपोज ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। इन दोनों बीच में एंगल है थीटा स्टूडेंट्स, और मुझे, तो ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ये मुझे पता है पैरेललोग्राम लॉ से कि ये मेरा आ जाएगा रिजल्टेंट आर, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। यही क्वेश्चन है आपका, ये कोई भी एक एंगल है थीटा इन दोनों के बीच में, समझ गए। तो कोई ये एंगल थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एंगल है, तो ये रिजल्टेंट आ गया मेरा पैरेललोग्राम लॉ से। लेकिन इसका एक फार्मूला क्या होगा जिससे मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लग जाए और डायरेक्शन पता लग जाए रिजल्टेंट की, ठीक है। तो लेट अस ड्राइव द फार्मूला। अब ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड आर, ये मैग्नीट्यूड ए, ये मैग्नीट्यूड बी, ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा पैरेललोग्राम में बी, राइट। और यहां से स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये जो आर है मैं इसको हाइपोटेन्यूज बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं इस आर को? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यही चलेगा आगे, ठीक है। तो इसको समझो, तो हमने एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, ये एंगल मेरा थीटा था बी और ए के बीच में, तो ये भी ए को ही है और ये बी है, तो ये एंगल थीटा ही है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? यस सर। तो स्टूडेंट्स ये बी है, तो ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पहले हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और ये बेस क्या हो जाएगा आपका, या एडजेसेंट साइड यहां पर बी कॉस थीटा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब मैंने कहा था आर को हाइपोटेन्यूज बना लो, तो ये आपका आर हाइपोटेन्यूज है, ये साइड आ गई आपकी बी साइन थीटा, और ये साइड क्या आई, ए, यहां तक ए थी और आगे कितनी है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो अब आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसको सॉल्व कर लो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab क्या आएगा कॉस थीटा, ओके, प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? यस सर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस, ये जो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो मैं कॉमन ले सकता हूं स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म से, और अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस क्या आ जाएगा आगे, प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना? यस सर। अरे यस सर। ये स्क्वायर क्यों लगा रहे हो, जब अंडर द रूट लगा दिया तो बताते रहो कुछ थोड़ा बहुत तो। अरे हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर द रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यूज किया ना हमने,
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस था, ये प्लस बी कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर था। तो क्या आ गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गया नहीं आ गया रिजल्टेंट। अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बस। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, उनके सम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स ये जो एंगल है अल्फा, ये जो रिजल्टेंट है, ये ए के साथ एंगल क्या बना रहा है अल्फा। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, डायरेक्शन भी बता दो मुझे। टेन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आ गई बात समझ में? Yes, sir. कुछ हमने बहुत मुश्किल किया है क्या यहाँ पर? No, sir. नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फार्मूला डिराइव किया जैसे हम रिलेशन डिराइव करते हैं। Done. तो ये फार्मूले आपके पास आगे बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब समझ लो इसका क्या मतलब है। अब इसको याद करने का तरीका देखो कितना आसान है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे चेक करके देखो। आपका चेक करने का तरीका बता दो सर हमें। चलो चेक करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। आपका ये जो ए और बी है, ये था आपका ए और ये था आपका बी। अगर इनके बीच में मैं एंगल कर दूं कितना 90, कितना कर दूं, 90. तो यहां आपका क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा ना। तो ये रिजल्टेंट क्या आना चाहिए आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? Yes, sir. चेक करो, थीटा इज इक्वल टू कितना है इसमें 90 डिग्री, पुट करो इसमें थीटा 90, तो आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। तो क्या आया, दिस इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 90 क्या होता है 0। इज दिस ओके? तो वही फार्मूला आ गया नहीं हो गया, आ गया। चेक हो गया नहीं हो गया आपका आंसर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो रिजल्टेंट यही तो था आपका डायगोनल, तो दोनों डायगोनल की लेंथ तो सेम होती है। Yes, sir. इज दिस ओके? Yes, sir. तो चेक हो गया। इसको याद करने का तरीका देख लो। ये आपका वेक्टर ए था, ये आपका वेक्टर बी था, और इन दोनों बीच में था एंगल थीटा। स्टूडेंट्स आपने इनका रिजल्टेंट निकाला आर, और वो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा था अल्फा। किसके साथ बना रहा था अल्फा एंगल? तो इसका तरीका क्या है, टेन अल्फा फॉर्मूला लिखने का तरीका देखो कैसे लिखोगे। जिस वेक्टर के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, उसको यहां लिखो सबसे पहले। किसके साथ बना रहा है अल्फा एंगल, कौन से वेक्टर के साथ, ए, उसको लिखो यहां पहले। आगे बात समझ में? Yes, sir. उसके बाद जो टेन अल्फा होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ए तो लिख लिया आपने, अब अगला कौन सा वेक्टर बच गया, बी, बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां बी का मैग्नीट्यूड लिख दो। अब ये एंगल कौन सा बच गया, थीटा अल्फा, तो यहां ले रहे आप, तो थीटा। तो यहां से आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है वो मैंने आपको याद करा दिया, ठीक है। चलो तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस क्वेश्चन के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अब तो कुछ बचा नहीं स्टूडेंट्स। आपको थीटा जो है ये था 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया थीटा, यहाँ पे ये 60 डिग्री था, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, है ना? Yes, sir. तो तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री
इन वेक्टर्स के बीच में। तो ये एंगल है 120 डिग्री। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट है, रिवर ले रहे हैं हम। तो ये बनेगा आपका रिजल्टेंट, और ये मान लो रिवर करंट के साथ जो है जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, फाइनल रिजल्टेंट। तो चलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि Vm किसके इक्वल होगा, ये दो चीज निकालनी थी ना इस क्वेश्चन में आपको। ये बोट ले लो, इसको m की जगह b ले लो बोट। तो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट क्या होगी बोट की, तो Vb मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये 10 है और ये कितना है 25। तो a स्क्वायर 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 2ab a इंटू बी इंटू कॉस कितना डिग्री, अरे कितना इन दोनों बीच में एंगल, 120 डिग्री है ना बेटा। तो कॉस 120 डिग्री कितना होता है, बताया था मैम ने सारे क्वाड्रेंट्स में, डेट इज कॉस 90 प्लस 30 कर लो इसको। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो आफ्टर स्कूल यहां साइन पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, कॉस 120 क्या होगा, कॉस 120 की वैल्यू खुद ही बता दो मुझे, माइनस में होगा तो नेगेटिव होगी वैल्यू, बिल्कुल। अब अगली बात, अगर यहां 90 लिखा है तो आपको इस कॉस को इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा जो कि साइन होता है। अगर 180 लिखा तो कुछ नहीं करना, 90 है तो हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, साइन है तो कॉस लिख दो, कॉस है तो साइन लिख दो, और एंगल एज इट इज यहां पर लिख दो। तो आ गया माइनस साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2 तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो यहां पर आप -1/2 लिख दोगे। तो वी बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 प्लस 225 प्लस 2 इंटू 5 25 50 50 इंटू 10 500 इंटू -1/2। तो कितना आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 100 प्लस 225 माइनस 225, हाँ या ना। Yes, sir. 225 क्यों आएगा, 250 नहीं आएगा। भाई 500 का हाफ 250 होता है ना। तो बेटे कितना आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू अंडर द रूट, अच्छा और ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, 225 नहीं होता। ओके, तो कहाँ है हमारा ध्यान, तो ये कितना आया 100 प्लस 725 माइनस 250, तो दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 475, इतना ही आया ना। Yes, sir. तो ये आ गई आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब डायरेक्शन और बता दो, डायरेक्शन पता आपको। अब ये वी आर के साथ आप एंगल बनाओगे, तो फार्मूले में तो किया था हमने अलोंग वी आर, लेकिन हम नॉर्मली जो जो बनाते हैं डायरेक्शन वो अब अलोंग विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बताते हैं हमेशा डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये वेस्ट। तो आपको डायरेक्शन के साथ बतानी पड़ेगी, या तो अलोंग ईस्ट बताओ या वेस्ट बताओ। तो हम जो है इसको अलोंग नॉर्थ बता देते हैं इसके साथ, ये एंगल अल्फा ले लेते हैं। समझ में आई कुछ बात,
Yes, sir. तो जो एंगल लेंगे हम इसमें, हमारे पास दो चॉइस हैं। अब आप मुझे खुद बताओ कि आप किसके साथ लोगे। ये तो आपका एंगल था थीटा, 120 निकाल लिया। अब जो ये रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट आपका निकला है VB, इसका एंगल VR के साथ लेना चाहोगे या V के साथ? V के साथ लोगे तो आपकी डायरेक्शन नॉर्थ के साथ आ जाएगी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes. Yes. Clear, sir. और मैंने बताया था बेटे tan अल्फा कैसे लिखना। सबसे पहले ये अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है? किसके साथ बना रहा है एंगल अल्फा? अरे भाई V के साथ बनाना, 25 के साथ, तो 25 लिखना पहले। आगे बात, उसके बाद क्या लिखें? उसके बाद फिर दूसरा बच गया कितना, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, तो फिर 10 लिख लेना। उसका 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ओके, और कितना एंगल आ जाएगा? दोनों के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री। समझ में आ गई कैसे लिखेंगे? cos 120 तो निकाल लिया आपने, साइन 120 कितना होगा ये बताना मुझे अब। दिस इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को, तो बताया था। अब साइन 120 बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। अब आगे आ जाओ, यहाँ 90 लिखा तो साइन होगा या कॉस? 90 तो चेंज हो जाएगा ना साइन, कॉस साइन में चेंज हो गया था, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? √3/2. तो बस अब ये दोनों वैल्यू लिख दो। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 10 और साइन 120 हो गया √3/2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10 इंटू कॉस 1/2 माइनस 1/2। तो tan अल्फा कितना आ गया? दिस इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, ये 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 टाइम्स 1, 2 5 द 10, तो ये आ गया आपका 5√3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5। यही आया नहीं आया? Yes, sir. तो ये कितना आ गया आपका? 5√3 अपॉन 20, यही आया ना। और 5 4 द 20, तो √3/4। तो इसको आप अल्फा को कैसे लिखेंगे? जो tan इधर लिखते हो तो इसको दूसरी तरफ लिखते हैं तो हो जाता है tan इनवर्स √3/4। ये लिखने का तरीका है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3/4। तो अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स √3/4। तो ये अल्फा किसके साथ है? विद नॉर्थ। ओके, विद नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए। मैग्नीट्यूड आया आपका कितना? मैग्नीट्यूड आपका कितना आया था? मैग्नीट्यूड 475 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन आ गई tan इनवर्स √3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां से, तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर से सॉल्व होता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा √3/4 कब होता है? तो √3/4 होता है जब ये होता है 23.4 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 23.4। तो ये कैलकुलेटर से होता है, आपको यहीं तक आंसर निकालना है। ये तो मैंने कैलकुलेटर से पता लगती है वैल्यू, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स बात समझ में? या इसके लिए फिर आपको टेबल्स भी दिए होते हैं, टेबल से भी आप निकाल सकते हो। टेबल से निकालने के लिए आपको √3/4, √3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.732 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आपका एंगल आएगा 0.433 डिग्री। और 0.433, सॉरी डिग्री नहीं, 0.433 tan इनवर्स 0.433, और 433 तो tan इनवर्स √3/4 होगा 1.732 डिवाइडेड बाय 4, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा। अब आपको पता है अगर tan इनवर्स 1 होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती, मुझे ये बताओ।
अरे 45 डिग्री नहीं होती क्या भाई? tan 45 1 नहीं होता क्या? तो ये 1 से कम है, तो एंगल बी 23 पॉइंट। ठीक है, चल ये कैलकुलेटर से या फिर टेबल दिए होते हैं उनसे निकलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। इसकी जरूरत नहीं है, मेन चीज समझो इसमें। आपने समझा क्या है इसमें से? ये फार्मूला आपने सीखा है कि रिजल्टेंट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं। ओके ओके सर। चलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी आपको। आज ये 3 वीडियोस हो गई हैं आपकी। इन तीनों वीडियोस को आपने पहली दूसरी देख ली होगी, दूसरी देखिए, दूसरी देखो, और ये तीसरी भी देख लो, तो तभी ये कंसेप्ट अच्छे क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने किए हैं। ओके चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।